अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम है उस्मान कुरैशी। कल ग्रेड 7 का मैथमेटिक्स का पेपर है। इस हवाले से मैं आपके लिए गेस्ट पेपर लाया हूँ। और सबसे पहले हम ऑब्जेक्टिव पार्ट को देखते हैं, फिर उसके बाद जो सब्जेक्टिव गेस्ट पेपर होगा उसको हम मुकम्मल सॉल्व करेंगे। ठीक हो गया, तो चलिए शुरू करते हैं। द एलसीएम ऑफ 12 एंड 24 इज, करेक्ट ऑप्शन इज डी 24। द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -9 इज, करेक्ट ऑप्शन इज बी। आइडेंटिफाई द इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, द करेक्ट ऑप्शन इज सी। Ikra bought 2 into 1/2 kg of sugar and she used 5/9 kg of sugar for a sweet dish. The sugar left with her is, तो कितनी चीनी उसके पास बचेगी? The correct option is 1 into 19 by 36. द सोल्यूशन ऑफ 3 इंटू 2 माइनस इंटू 1 क्रॉस 3 इज, ये वाला बोर्ड मैथ्स रूल अगर आपको याद होगा, हम चूँकि ऑब्जेक्टिव पेपर कर रहे हैं तो ज़ाहिर ऐसे क्वेश्चन थोड़े से सॉल्व करने पड़ते हैं। तो मैं शॉर्ट्स आपको बता दूं कि पहले ब्रैकेट वाली चीज़ सॉल्व होगी, फिर उसके बाद मल्टीप्लाई होगा, फिर जो है वो इसको माइनस किया जाएगा। तो द करेक्ट ऑप्शन इज सी, विच इज़ 3। द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स इज डिनोटेड बाय, करेक्ट ऑप्शन इज ए। द सबसेट ऑफ द सेट 0 1 2 3 इज, correct option is A, means 1 comma 2. The value of x in the proportion x ratio 6 proportion 7 ratio 14 is, the correct option is C, 3. The simplest form of 5 ratio 50 is, correct option is C. If the cost price of a chair is 500 and sale price is 600, then the profit will be, correct option is C, 100. If the area of a square shaped card is 169 centimeter square, then length of its one side will be, the correct option is A, 13 centimeter. If the general term of a sequence is an is equal to 3n plus 1, then its 15th term will be, the correct option is D, 46. Next देखते हैं, the general term of the square, the general term of the sequence 2 4 6 is, the correct option is A, 2n. Identify the binomial, the correct option is A. The product of 8x squared and 7x cubed y4 is, the correct option is C. The sum of 5x squared minus 4x plus 5 and 3x squared minus 2x minus 1 is, correct option is A, 8x squared minus 6x plus 4. The equation of the statement sum of ages of Amna and Fiaz is 25 years is, the correct option is B, which is x plus y is equal to 25. The point -5, -11 lies in the quadrant. The correct option is C, third quadrant. The solution of equation 3x plus 2 is equal to 11 is, the correct option is B, 3. The linear equation for the statement cost of 7 notebooks and 9 books is Rs 2150. The correct option is C, 7x plus 9y is equal to 2150. Meter is 15 kilometer or, the correct option is D, 15,000 meters. Centimeters in 62 meters are, the correct option is C, 6,200 centimeters. If a car covers 100 meters in 10 seconds, then its average speed will be, correct option is B, 10 meters per second. If the radius of a circle is 14 centimeter, then its circumference will be x is equal to 22 by pi is equal to 22 by 7, ये आपको गिवन है। तो सॉल्व करने के बाद the correct option will be A, 88 centimeter. If the radius of a cylinder is 8 meter and height is 7 meter, then the volume of cylinder will be, if pi is equal to 22 by 7 is given, the correct option is B, 1408 meter cube. A triangle with all angles less than 90 is called, the correct option is C, acute angle triangle. One angle of a triangle is 70 degrees and second angle is 50 degree, then the third angle will be, the correct option is C, which is 60, because तमाम का सम 180 होता है ना, इसलिए हमने ये अंदाजा लगाया। The value of angle x in the given figure is, x यहाँ पर है तो तमाम का सम जो है वो 180 होता है ना, तो अगर इनको प्लस करके 180 से माइनस करें, then the correct option will be C, 50. The order of rotational symmetry of a regular pentagon is, correct option is D, 5. An example of continuous data is, the correct option is C, height of a student. If a dice is rolled, then the probability of getting number 6 is, the correct option is A, that is 1 by 6. Mean of the data 16, 18, 20, 24, 30 is, mean means average, अगर एवरेज निकालें तो the correct option will be B, 21.6. ये तो था ऑब्जेक्टिव। अब आते हैं सब्जेक्टिव पेपर की तरफ, और सब्जेक्टिव पेपर जो है वो हम प्रॉपर सॉल्व करेंगे। ठीक है जी, तो बच्चों ये सब्जेक्टिव पेपर का गेस्ट पेपर है। स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। प्रूव दैट
दिस सेट ऑफ इक्वेशंस आर इक्वल टू दिस सेट ऑफ इक्वेशन। इन दोनों को हम बारी बारी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड करके सॉल्व करेंगे, फिर दोनों का जो है ना हम वो आंसर सेम ले आएंगे, तो हम कहेंगे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। समझ आ गई? तो स्टार्ट करते हैं। मैं यहाँ पे इक्वेशन लिख लेता हूँ। सबसे पहले मैं कहता हूँ लेफ्ट हैंड साइड, इधर लिखा मैंने, तो मैं सबसे पहले ना लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करने लगा हूँ। लेफ्ट हैंड साइड क्या कहती है? 3/7 प्लस 5/9 प्लस 4/21 ओवर 21, ये 4 है। तो सबसे पहले ब्रैकेट वाली चीज़ सॉल्व होती है ना, इसका मैं ले लेता हूँ एलसीएम। एलसीएम क्या आएगा? 63, ठीक है। तो 63 क्यों है, दोनों को मल्टीप्लाई किया, 9 7 63 होते हैं, 9 7 63, 9 का टेबल 63 के ऊपर 7 टाइम्स जाएगा, 7 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 35, प्लस की जगह प्लस, 7 का टेबल 63 पर 9 टाइम्स जाएगा, 9 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 9 तिया 27, ठीक है। और ये जो +1/21 है, ये हमारे साथ साथ चलता जा रहा है। अच्छा, अब इनको जमा कर देते हैं। 7 5 12, एक आ गया असल, 3 2 5 और एक 6, डिवाइडेड बाय 63 प्लस 4/21, ये 4 है, ठीक है। मित्र गलती ना करना, 1 ना कर। अच्छा, अब देखते हैं जी कि यहाँ पे एलसीएम क्या आएगा। यहाँ पे अगेन एलसीएम हम ले लेते हैं 63, क्योंकि इसका टेबल भी इसके ऊपर चला जाता है, इसका टेबल भी इसके ऊपर चला जाता है। 21 का पहाड़ा 63 के ऊपर कितनी दफ़ा जाएगा? 3 दफ़ा। तो 3 को 4 से ज़रब देंगे, 4 तिया 12, 63 का टेबल 63 के ऊपर एक टाइम जाएगा, तो इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यह आ जाएगा 62। अब इन दोनों को जमा कर लेंगे। 62 प्लस 12, 2 2 4 6 और एक 7, डिवाइडेड बाय 63। तो देखते हैं क्या कोई टेबल इनको काट सकता है? नहीं, किसी का पढ़ा नहीं जाता। इसको यहीं पे क्लोज कर देते हैं। ये होगी हमारी राइट हैंड साइड। अब सॉल्व कर लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड को। लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास क्या था जी? सॉरी, राइट हैंड साइड को सॉल्व कर लेते हैं। ये थी ना लेफ्ट हैंड साइड, तो राइट हैंड साइड में क्या था हमारे पास? हम लिख लेते हैं 3/7 प्लस 5/9 प्लस 4/21, ये है ब्रैकेट के अंदर। तो जैसे मैं पहले भी कहा कि सबसे पहले ब्रैकेट वाली चीज़ सॉल्व करते हैं, तो 3/7 एज इट इज़ आ जाएगा। फिर इसको सॉल्व करेंगे। इसका टेबल क्या एलसीएम आएगा जी? 9 का और 21 का, ये मेरे ख्याल में इसका भी आएगा 63 टेबल, क्योंकि करीब तरीन ऐसा नंबर जिसके ऊपर इन दोनों का पाड़ा चला जाता है वो 63 ही है। 21 का पाड़ा 63 पे 3 दफ़ा जाएगा, तो 3 चौके 12, प्लस 9 का पहाड़ा 63 पर 7 टाइम्स जाएगा, तो 7 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 5 35, ठीक हो गया। अच्छा जी, अब क्या है? 3/7 प्लस, इनको प्लस कर देते हैं, 5 2 7 3 और एक 4, डिवाइडेड बाय 63। अच्छा जी, अब अगेन एलसीएम ले लेते हैं। 63 आएगा एलसीएम। 63 का पाड़ा 63 पे एक ही दफ़ा जाएगा, एक को 47 के साथ मल्टीप्लाई किया, 47 प्लस 7 का पाड़ा 63 पे 9 टाइम जाएगा, और 9 तिया 27 को जमा कर लेते हैं। 7 और 7 14, एक कैरी, 4 2 6 और एक 7, डिवाइडेड बाय 63। तो ये देखें, ये लेफ्ट हैंड साइड थी, ये राइट हैंड साइड, दोनों इक्वल आ गई हैं। सो हम लिख सकते हैं, सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये भी ऐसे करके लिख लें, या आप दोबारा से क्वेश्चन आप भी लिख लें तो भी आपका ये करेक्ट हो जाएगा। ठीक हो गया? समझ आ गई स्टूडेंट? नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो बहुत ही मशहूर क्वेश्चन है, सेट्स के हवाले से है। यूनिवर्सल सेट दिया गया है, फिर ए सेट दिया गया है और बी सेट दिया गया है। कहता है वेरीफाई करो ए इंटरसेक्शन बी होल कंप्लीमेंट इज इक्वल टू ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट। ठीक हो गया जी, इसको हम साइड पे कर देते हैं और क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं लिखना। थोड़ा सा इसको एडजस्ट कर लेते हैं जी। अच्छा जी, सबसे पहले हम लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड। देखें, लेफ्ट हैंड साइड में हमने क्या चीज़ फाइंड करनी है? ए इंटरसेक्शन बी होल का कंप्लीमेंट। तो ये तभी फाइंड करेंगे जब हमारे पास जो है ना वो ए इंटरसेक्शन बी मालूम होके आ जाएगा। तो सबसे पहले हम ए इंटरसेक्शन बी फाइंड करेंगे। ए सेट लिखा पहले, 2 8 12 16 और 20, ठीक है, इंटरसेक्शन की अलामत। फिर लिखा सेट बी, क्या था जी? 10 और 20। ठीक हो गया। अब इनका इंटरसेक्शन फाइंड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा, इसका मतलब है कॉमन एलिमेंट्स निकालना दोनों में से। 2 नहीं है, 8 नहीं है, 12 नहीं है, 16 नहीं है, 20 है, तो सिर्फ वही लिख लेंगे। ठीक है, तो ए इंटरसेक्शन बी होल कंप्लीमेंट बराबर होता है यू माइनस ए इंटरसेक्शन बी के। ठीक हो गया, यू में से किसी भी सेट को माइनस करें ना तो वो कंप्लीमेंट बन जाता है। पहले यू सेट लिखेंगे 2 4 6 अप टू 20 तक, और माइनस करेंगे इस 20 को जो कि है ए इंटरसेक्शन बी। सो ए इंटरसेक्शन बी होल कंप्लीमेंट इज इक्वल टू यू माइनस बी। इस सेट का मतलब होता है कि ऐसे तमाम एलिमेंट्स लिखो जो कि इसमें मौजूद हैं और इसमें मौजूद नहीं है। दूसरे लफ्ज़ों में, इस सेट के एलिमेंट्स में से इस सेट का एलिमेंट माइनस कर दो और बकाया एलिमेंट्स लिख लो। तो एक 20 नहीं हम लिखेंगे, बाकी 2 4 6 8 10 12 14 16 18 तक हम सारे एलिमेंट्स लिख लेंगे। ये हमारी होगी लेफ्ट हैंड साइड। अब फाइंड करेंगे राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में हमने क्या फाइंड करना है? ए कंप्लीमेंट यूनियन बी का कंप्लीमेंट। सबसे पहले ए कंप्लीमेंट फाइंड करेंगे जो कि है यू माइनस ए इज इक्वल टू, यू सेट क्या है? 2 4 6 से लेकर 20 तक, माइनस ए सेट है हमारे पास 2 8 12 16 और 20। ठीक हो गया। सो ए कंप्लीमेंट, वही बात, यू माइनस ए का मतलब है वो तमाम एलिमेंट्स जो यहाँ पे मौजूद हैं वो इस सेट में से माइनस कर लेने, हमने नहीं लिखने जो जो यहाँ पे मौजूद हैं। 2 नहीं लिखेंगे,
4 लिख लिया, 6 लिख लिया, 8 नहीं लिखेंगे, 10 लिख लिया, 12 नहीं लिखेंगे, 14 लिख लिया, 16 नहीं लिखेंगे, 18 लिख लिया और 20 नहीं लिखेंगे। ठीक हो गया। बी कम्प्लीमेंट अब फाइंड कर लेते हैं। इज इक्वल टू यू माइनस बी इज इक्वल टू, पहले यू सेट 2 4 6 से लेकर 20 तक, माइनस बी सेट है आपके पास 10, 20। अगेन बी कम्प्लीमेंट, यू माइनस बी का मतलब है इस सेट में से ये वाले एलिमेंट नहीं लिखेंगे, बाकी सारे लिख लेंगे। 2 4 6 8 10 नहीं लिखेंगे, 12 14 16 18। ठीक हो गया। अब यूनियन लेना है, ए कम्प्लीमेंट यूनियन बी कम्प्लीमेंट इज इक्वल टू 4 6 10 14 18। ए कम्प्लीमेंट सेट लिख लिया, यूनियन का सिंबल डाला, ये लिखा 2 4 6 8 12 14 16 और 18। तो ए कम्प्लीमेंट यूनियन बी कम्प्लीमेंट का मतलब है इन दोनों को सेट्स के एलिमेंट्स को यूनियन करके लिखना है, कंबाइन करके लिखना है, लेकिन रेपिटेशन नहीं होनी चाहिए। तो आप लिखेंगे 2, ठीक है, फिर 4 6 8 10। ठीक हो गया। 2 यहाँ से, 4 6 8 10, यहाँ से 12 14 16 और 18। तो आप अब देखें कि ये वाली जो चीज़ है, ये हमने ऊपर जो फाइंड किया, ये वाली जो चीज़ है, क्या ये इस चीज़ के बराबर है? ठीक है, 2 4 6 8 10 12 14 16 18 बराबर है, बिल्कुल। तो हम कहेंगे सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये आपने सॉल्व कर लिया। स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्राइस ऑफ एन इलेक्ट्रिक कूलर इज 17,500, 17,500 इफ देयर इज ए डिस्काउंट ऑफ 15%, 15% अगर उसके ऊपर डिस्काउंट है, फाइंड द डिस्काउंट एंड इट्स सेलिंग प्राइस। तो हमने वो डिस्काउंट पैसों में निकालना है और बताना है कि आफ्टर डिस्काउंट वो कितने पैसों में बिका। ठीक हो गया जी, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बिल्कुल परेशान नहीं होना। हम इसको थोड़ा सा अरेंज कर देते हैं यहाँ पे और इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अच्छा जी, सबसे पहले हम लिखेंगे कि प्राइस ऑफ इलेक्ट्रिक कूलर, जो इलेक्ट्रिक कूलर उसकी प्राइस है वो कितनी है जी? 17,500। ठीक हो गया। डिस्काउंट कितना है जी? इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज दैट इज इक्वल टू 15% इसके ऊपर डिस्काउंट है। तो सबसे पहले तो हम उसकी डिस्काउंट की प्राइस निकालते हैं ना कि इसके ऊपर कितना डिस्काउंट है। तो डिस्काउंट निकालने का क्या तरीका है? 15/100, 15% ऑफ 17,500। ये दो से गए तो आपके पास जो डिस्काउंट की जो अमाउंट है वो क्या बचेगी? 175 को 15 से जब आप ज़रब देंगे तो आपके पास आएगा 2,625 रुपये। सो सेलिंग प्राइस आफ्टर डिस्काउंट, डिस्काउंट के बाद जो सेलिंग प्राइस कितनी है, तो वो हमने इसमें से ये चीज़ माइनस करनी है। 17,500 माइनस 2,625, तो हमारे पास आंसर आएगा 14,875 रुपये। इसके साथ RS लिख दें तो भी ठीक है। तो ये आपका आंसर है। ठीक है, देखो कितना आसान सवाल था जी। तो स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इफ द जनरल टर्म ऑफ ए सीक्वेंस इज 5n² - 3 देन फाइंड द 13th टर्म ऑफ द सीक्वेंस। बहुत ईजी है, ये समझ लो, हमें इक्वेशन है, n की जगह 13 पुट करेंगे तो सॉल्व करके आंसर निकालेंगे। ठीक है जी, लिखना कैसे है देखो, सॉल्व का क्या तरीकाकार है। सबसे पहले आप लिखेंगे an इज इक्वल टू, ये हमें जो जनरल टर्म ना उसने दी हुई है सीक्वेंस की, ठीक है, वो क्या है? 5n² - 3 फॉर n इज इक्वल टू 13। उसने कहा ना इसके लिए मालूम करो, हमने कह दिया ठीक है जी। A13 इज इक्वल टू 5 इंटू 13 का स्क्वायर माइनस 3। तो 5 इंटू 13 का स्क्वायर कितना होता है? 169 माइनस 3। 5 इंटू 169 होते हैं 845 माइनस 3। तो 845 में से 3 के बाकी लिखेंगे। A13 इज इक्वल टू 842। ये 13th टर्म थी इस सीक्वेंस की। ठीक है, ये आपका आंसर आ गया। देखो कितना आसान सवाल था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं जी। सब्ट्रैक्ट दिस फ्रॉम दिस इक्वेशन। वाह जी वाह, कैसे सब्ट्रैक्ट करते हैं आइए देखते हैं। मैं बहुत ही कन्वेंशनल यानी कि ना रवायती तरीका आपको सिखाऊंगा, कोई मुश्किल काम नहीं करेंगे। देखें, जो बड़ी रकम है ना वो हमेशा ऊपर लिखनी होती है, या जो लिखा होता है ना फ्रॉम, कि जो फ्रॉम के बाद जो रकम लिखी होती है ना वो सबसे ऊपर लिखते हैं। ठीक है, 9x² प्लस 5x माइनस 5। ठीक है, ये फ्रॉम के बाद लिखी हुई थी, ऊपर लिखेंगे क्योंकि बड़ी रकम। इसमें से माइनस क्या करना है? जो रकम पहले लिखी हुई थी। बेसिकली ये इक्वेशन है 7x² माइनस 2x प्लस 4। ये प्लस का जिसके साथ कोई सिंबल नहीं होता उसके साथ हम प्लस लगा देते हैं जी। अच्छा, अब हमने क्या करना है? माइनस। जब हम करते हैं ना माइनस तो नीचे वाली जो रकम होती है उसकी अलामतें बदल जाती हैं। ठीक है, तो अब हमने करना है, ये प्लस का 9 है, ये माइनस का 7 है। ठीक है जी, तो जब ये ऐड अप होते हैं, जब माइनस होते हैं तो इनके कोएफिशिएंट्स प्लस माइनस होते हैं, वेरिएबल सेम रहता है। तो प्लस का 9 है, माइनस का 7 है, आपके पास बचेगा प्लस का 2x²। अब ये दोनों प्लस के हैं ना, दोनों दोस्त हैं, दोनों इकट्ठे हो जाएंगे। +5 + 2 प्लस का 7x
अब ये भी दोस्त हैं चूंकि सेम अलामत के हैं ना, माइनस के, ये भी इकट्ठे हो जाएंगे, अलामत आएगी माइनस की, 5 और 4 9, ठीक है। ये आपका आंसर है। ये बहुत ही डिटेल टॉपिक है कि कैसे प्लस 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 होते हैं, कभी प्लस माइनस माइनस हो जाता है, माइनस माइनस प्लस होता है, कब प्लस प्लस माइनस 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 रहता है, ठीक है। ये फिर किसी दिन इंशाल्लाह हम डिटेल में देखेंगे इसी चैनल के ऊपर। बहुत ही इंपॉर्टेंट मालूमाती वीडियोज़, शॉर्ट वीडियोज़ अपलोड होती रहती हैं, ठीक हो गया। ये भी क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट जी, साद इज़ 4 ईयर्स यंगर देन अब्दुल्ला। साद जो है वो अब्दुल्ला से 4 साल छोटा है। 4 ईयर्स यंगर का मतलब है कि वो छोटा है। 2 ईयर्स लेटर अब्दुल्ला विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज साद। 2 साल बाद अब्दुल्ला जो है वो साद से 2 साल उसकी डबल हो जाएगी एज। फाइंड देयर पेरेंट्स एज। पेरेंट की एज फाइंड करनी है, ठीक है। सवाल देखने में मुश्किल है लेकिन इतना मुश्किल नहीं है, समझ के करते हैं आपको समझ आ जाएगी जी। तो हम स्टूडेंट हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन के आंसर को। थोड़ा सा ट्रिकी है लेकिन इतना मुश्किल नहीं है, मेरे साथ साथ रहिएगा तो इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगी, ठीक है। सबसे पहले हम गौर करते हैं कि क्वेश्चन में गिवन क्या क्या है, ठीक है। सबसे पहले हमने लिखना है कि सपोज फर्ज करते हैं, मैथ में अक्सर हम फर्ज कर लेते हैं कि अब्दुल्ला की जो एज है वो कितनी है, इज इक्वल टू एक्स, ठीक हो गया। दूसरी जो चीज़ हमें गिवन थी वो थी साद के पेरेंट की एज, ठीक है। साद पेरेंट की एज, ये भी चीज़ हमने फाइंड करनी है। तो फाइंड कैसे करनी है, हमें गिवन था कि x माइनस 4 यानी कि जो अब्दुल्ला है वो 4 ईयर्स, सॉरी इसका जो साद है वो 4 ईयर्स यंगर देन अब्दुल्ला है, ठीक है। तो साद की एज अब्दुल्ला से 4 साल कम है, ठीक है। हमने उसकी मदद से ये इक्वेशन बना ली। आफ्टर 2 ईयर्स फिर अब्दुल्ला की एज क्या होगी, क्योंकि पूछा गया ना कि 2 ईयर्स लेटर अब्दुल्ला विल बी ट्वाइस एज ओल्डर देन साद, ठीक है। ये भी हमें गिवन था तो हम लिखेंगे आफ्टर, तो आफ्टर 2 ईयर्स 2 साल के बाद फिर क्या है जी, 2 साल के बाद क्या एज होगी, x प्लस 2, ठीक है। आफ्टर 2 ईयर्स जो अब्दुल्ला की एज है वो है x प्लस 2। सो साद की एज फिर क्या होगी, साद की एज होगी x माइनस 4 प्लस 2, ठीक हो गया। x माइनस 2, x माइनस 4 प्लस 2, ठीक है, क्योंकि x हमने कह दिया ना x माइनस 4 और प्लस 2, ठीक है। आफ्टर 2 ईयर्स ये हमने एक इक्वेशन बना ली। सो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि x प्लस 2 इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स माइनस 4 प्लस 2, यानी कि 2 साल के बाद फिर क्या एज होगी, यानी कि x प्लस 2 इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स माइनस 2, माइनस का 4 था प्लस का 2, ये बन गया माइनस का 2। या हम लिख सकते हैं x प्लस 2 इज इक्वल टू 2x माइनस 4, ठीक है। अब हम क्या करते हैं कि इसको इधर ले आते हैं, ठीक है, 4 को इधर ले जाते हैं, ठीक है। तो हम करते हैं x इज इक्वल टू, सॉरी हम यहाँ पे पहले 2 को रहने देते हैं और 2x माइनस 4 माइनस एक्स को ले जाते हैं इधर। फिर अगले स्टेप में इसको हम उधर ले जाते हैं, प्लस का 4 प्लस का 2 इज इक्वल टू 2x माइनस एक्स। मैं स्टेप कुछ फालतू कर रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए, ठीक हो गया। तो 4 to 6 इज इक्वल टू 2x माइनस एक्स इज इक्वल टू एक्स, यानी कि x इज इक्वल टू 6 हो गया। अब ये क्या चीज़ है, ये अब्दुल्ला की एज आ गई जो हमने स्टार्ट में लेट की थी, ठीक है। हम लिख सकते हैं अब्दुल्ला एज इज इक्वल टू 6 ईयर्स, ठीक हो गया। अब साद की एज क्या है, x माइनस 4 इज इक्वल टू एक्स माइनस 4 इज इक्वल टू 6 माइनस 4 इज इक्वल टू 2 ईयर्स, ठीक हो गया। ये चीज़ निकल आई। आगे समझ, ट्रिकी क्वेश्चन था, इतना मुश्किल नहीं था लेकिन स्टेप बाय स्टेप हम चले तो हमने देखें कितनी आसानी के साथ इसको सॉल्व कर लिया जी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स। कहता है ईजल लड़की है टेक्स 2 आवर्स एंड 50 मिनट्स टू मेक अ बर्थडे केक, इन हाउ मेनी मिनट्स डज शी कंप्लीट। यानी कि हमने क्या करना है, इस 2 आवर्स को मिनट्स में कन्वर्ट करके इस 50 में ऐड करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। कैसे, इधर ही देख लेते हैं, सवाल थोड़ा सा बिल्कुल शॉर्ट सा है तो हम इसको इधर ही साइड पे सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। कैसे, 2 आवर्स 50 MINUTE, ठीक है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, आवर्स में कितने होते हैं जनाब, 60 मिनट्स। हम इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 60 प्लस 50, 120 प्लस 50, सो दैट इज इक्वल टू 170 मिनट्स। ये हमारा आंसर है। बस देखें कितना जल्दी हमने सॉल्व कर लिया, ठीक है। नेक्स्ट क्या जी, इफ़ द रेडियस ऑफ द सर्कल इज 9 सेंटीमीटर देन फाइंड द एरिया ऑफ द सर्कल। अब सर्कल का एरिया फाइंड करने के लिए हमें पता है कि फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। इसको इधर साइड पे सॉल्व कर लेते हैं। बहुत इजी क्वेश्चन है। कैसे, देखें रेडियस ऑफ द सर्कल इज 9 सेंटीमीटर और 9 है, ठीक है। तो हम लिखेंगे एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर, ठीक है।
पाई होता है 22/7 कर लो या 3.1415 कर लो। मैं इसको करता हूँ 22/7 मल्टीप्लाई बाय आर की जगह उसकी वैल्यू पुट करेंगे जो कि है 9 हमें गिवन है, 9 का स्केयर। सो 22/7 मल्टीप्लाई बाय 9, 9 जार 81। अब मेरा नहीं ख्याल कि ये कुछ कटते हैं आपस में, तो 22 और 81 को आपस में मल्टीप्लाई कर दो, हमारे पास आएगा 1782 डिवाइडेड बाय 7। सो इनको अगर आप काटते हैं तो हमारे पास आंसर आता है, टेबल लेकर जाएँ तो 254.57 सेंटीमीटर स्क्वेयर, ये हमारा आंसर आ गया। ठीक हो गया। ये देखते हैं जी क्या हम ये ज्योमेट्री के बगैर बना सकते हैं या नहीं बना सकते। मेरे ख्याल में इसके लिए मैं कंस्ट्रक्ट राइट एंगल ट्राइंगल ABC इन विच मेजरमेंट ऑफ वन साइड इज़ 5 सेंटीमीटर, एंगल है 60 का एंड राइट एंगल एट द पॉइंट है। तो ये ज्योमेट्री के साथ हम बनाएंगे इंशाल्लाह। देखते हैं, सुबह टाइम हुआ तो मैं आपके साथ ये इसका सोल्यूशन शेयर कर दूंगा। ठीक है, इसको कर लेते हैं जी, फाइंड द मीन ऑफ द गिवन डेटा। मीन क्या होता है? मीन एवरेज होती है। ठीक है, तो अगर इस किस्म का डाटा दिया हुआ है तो फिर हम कैसे फाइंड करते हैं। ठीक है, उसके लिए हमें एक टेबल बनाना पड़ेगा। तो अगर आप मुझे अलाउ करें तो मैं इसी पे, जहाँ पे जो जगह बनी है, तो इसी के ऊपर ही हम टेबल बना देते हैं। क्लास इंटरवल्स ये गिवन है और नीचे जो है वो फ्रीक्वेंसी गिवन है। तो हमने क्या करना है, सबसे पहले लिखना है कि फार्मूला क्या जो हमने फाइंड करना है। हमने फाइंड करना है मीन, उसका फार्मूला होता है सिग्मा या समेशन, इसको पढ़ते हैं एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय समेशन एफ। ठीक है, इसमें हम पुट करेंगे। अब फ्रीक्वेंसीज ये हमें गिवन है। अब एफ एक्स का मतलब है कि इस फ्रीक्वेंसी को इनके मिड पॉइंट के साथ मल्टीप्लाई करके तो हमने जो है ना वो कुछ बनाना होता है। तो अगर मैं कहूँ ये क्लास इंटरवल, ठीक है, यहाँ पे अगर क्लास इंटरवल आ रहे हैं, क्लास इंटरवल में इसको सी आई कर दूँ। ठीक है, तो अगर क्लास इंटरवल हैं 36 से 44, तो इसका जो मिड पॉइंट है, ठीक है, मिड पॉइंट इसको हम कह लेते हैं एक्स, इसका मिड पॉइंट है 40। अगर क्लास इंटरवल है जी 45 से 53, तो इसका जो मिड पॉइंट है वो है 49। और अगर क्लास इंटरवल है जी 54 से 62 तक, तो इसका जो मिड पॉइंट है वो है 58। और 63 से 71 तक अगर क्लास इंटरवल है तो इसका मिड पॉइंट है 67। एंड लास्ट पे है अगर 72 से 80 तक हमारे पास रेंज है क्लास इंटरवल्स की, उसका मिड पॉइंट होगा 76। ठीक है, अच्छा, अगर आप ये सोच रहे हैं कि हमने ये कैसे फाइंड किया है, तो मैं आपको आसान 3 तरीका बताता हूँ। फॉर एग्जांपल इस लास्ट वाले का, इन दो को जमा करें, 72 प्लस 80 हमारे पास आता है 152। इसको 2 से डिवाइड कर लें, 2 कम 2, 2 7 14, 12 2 6 12, ये हमारे पास मिड पॉइंट एक्स आ गया। ठीक है, इन दोनों को जमा करके 2 से डिवाइड करने पर ये वाले हमारे पॉइंट्स आ जाते हैं। तो अब जो है वो फ्रीक्वेंसीज़ हैं हमारे पास, क्या हैं जी फ्रीक्वेंसीज़ जो एफ़ हैं वो है 8 है, इसकी 15 है, इसकी 12 है, इसकी 9 है, इसकी 6 है, इसकी। सो जो हमने एफ एक्स बनाना है, एफ एक्स, वो इनको इसको ज़रब देके 40 इंटू 8 320, 49 इंटू 15 इज़ 735, 58 इंटू 12 696, 67 इंटू 9 603, 76 इंटू 6 456। ठीक हो गया। अब हमने टेबल तो बना लिया, अब जो है जस्ट इस फार्मूले में हमने वैल्यूज़ पुट करनी है। यानी कि हमने सबसे पहले ये जो इस एफ एक्स को जमा करना है, इसका मतलब ये है सिग्मा एफ एक्स इज इक्वल टू 320 प्लस 735 प्लस 696 प्लस 603 प्लस 456। तो इसका आंसर आता है 2810। ठीक है जी, और फिर नीचे इन सबको जमा कर देना है। सिग्मा एफ इज इक्वल टू 8 15 12 9 एंड 6 दैट इज इक्वल टू 50 आ जाता है हमारे पास। ठीक है जी, तो अब जैसा कि हमने पहले भी कहा ऊपर, मीन इज इक्वल टू दिस, इसकी क्या वैल्यू है 2810 डिवाइडेड बाय दिस 50, ये इससे कट गया तो हमारे पास बचेगा 56.2 हमारा आंसर है। तो ये स्टूडेंट यहाँ पे ख़त्म हुआ जाता है गेस्ट पेपर। आपका इस हवाले से कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में पूछिएगा। इंशाल्लाह इस चैनल के साथ जुड़े हैं, अगली क्लासेस में भी आपका बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। टाइम टू टाइम जब गेस्ट पेपर की बारी होगी, गेस्ट पेपर लूँगा, कोई और इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट होगी तो वो भी आपको बताता रहूँगा। अल्लाह हाफिज़।